Today we are very fortunate to have Sri Ninong Iring, Honorable Advice of Bangaoji, Chief Engineer UD and Housing, Taring Darangji. Let's start the program. We have with us Sri Kamla Umasang, Honorable Local Bodies. May I request our Secretary, Sri Ajay Kumar Bisk, Secretary of the Department, to give the welcome address. सेरेमनी है। 17 गाड़ियां आज जाएंगी। ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक दूसरी गाड़ी बन रही है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स इसमें छूट जाएंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट उनके लिए भी हम इस तरह की गाड़ियां अवेलेबल कराएंगे। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग अर्बन डेवलपमेंट, द डिपार्टमेंट इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट urban bodies under the able guidance of Honorable Minister. Now I would request Honorable Minister sir to please give his guidance to us. And also to Honorable Mayor and Honorable MLA. And Honorable Mayor. And now may I request Chief Engineer Taring and also to Sri Abagao sir. And also to Lee Bagra, Director ULBs. Now, may I request our Marconi Potam sir to do the honor to our And also to yourself. And also to all the corporators of Itanagar Municipality. Tar Achar, followed by Tar Achar. Rohit Togong. Matoka mado IMC. Mado Jisto. Last ladies from Jisto. They are corporators of Itanagar, Nari Shakti of Itanagar Municipal Corporation. Thank you, Marconi Potamji. Thank you very much. Now, we will have a word of advice. Today, we are all here to flag off 17 sanitation vehicles to 17 Buda towns. This vehicle has been purchased
from the fund released under RE 21 and 22. We are aware that more than 35% of our country's population are residing in urban areas. And in our state also, there are 47 notified urban towns, wherein about 26% of our state populations are living. Government of India, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji and our State Chief Minister Sri Pema Khandu ji, are giving focused attention to improve the living conditions of urban areas. And the Government of India therefore has launched many programs on mission mode under urban sectors like Smart City Mission, AMRUT, SDM, the NULM, PMAY, etc. Improve the living conditions of urban dwellers. Because in our country, more than 60% are contributed by the GDP, are contributed by the urban dwellers, because most of their activities are concentrated in urban areas. That is why government is giving more attention, more focus, since our citizens are contributing to the growth of this country. Then it is also responsibility of the central and the state government to provide basic facilities to the urban dwellers. We are grateful to our Honorable Chief Minister Pema Khandu ji and also Deputy Chief Minister Chaura Main ji for providing sizable amount of funds to the Department of UD and urban local bodies, and also enhancing the annual allocation to urban local bodies, that is Pasighat Municipal Council and Itanagar Municipal Corporation. We are sure that with the constant support and encouragement and also strong determination from our Chief Minister, we the department will be in a position to go ahead to improve the living standard of urban areas. But as Secretary has already said, today we are dispatching 17 vehicles only to 17 rural towns, but there are still many more towns left to be provided. I think हमारा बीच में senior most leader, former union minister as well as present MLA, तीनों की खुश होना चाहिए कि इनका रुकसिन भी नाम आ गया. So I am happy because आप आएगा बोल के कल सुना था. Then I am really thankful to you for participating in this small function. We are organizing this, department has organized this very small function, but then it is also a part to commemorate the 75 years of Indian independence, which we call it Azadi Ka Amrit Mahotsav. So with these few words, I thank you. Thank you very much. Thank you very
for a very, we need to, because the vehicles also has to be taken care in the future. So we will officially hand over the documents of the vehicle to Chief Engineer of Urban Development and Housing. Now we will all proceed for जाते से निकल जाए हम साइड में जाने का जगह नहीं देगा साइड से सब निकल जाएगा ट्रक निकलेगा रे कुछ चल के जाएगा ट्रक निकलेगा इसका फोटो लीजिए कैमरा में देखिए बात खाबो ही करने कमती कमती कोई कमती कमती बेसी बेसी नहीं कमती कमती हाथ तो लेट हो गई दे आज का जो है हम लोगों ने 17 जो अर्बन डूडा टाउन्स के लिए 17 व्हीकल सैनिटेशन व्हीकल ट्रक खरीदा था जो पारी में 5 करोड़ दिया था। उसी में से 17 ट्रक्स एंड प्लस एक ईटानगर के लिए भी है वो जो स्वीपिंग शायद व्हीकल एक लिया है वो अभी तक नहीं दिया। सर आज टोटल 17 का फ्लैग ऑफ किया। हाँ सर काफ़ी बार देखा जाता है कि इनोवेशन और फ्लैग ऑफ तो किया जाता है, मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। अभी भी काफ़ी है यूडी के ही अंदर में ट्रक्स नॉट ओनली इन कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स में जो टाउन प्लानिंग के अंदर ही आता है वो बंद पड़ा हुआ है, ऐसे कबार बन गया। तो उसके ऊपर में एज अ मिनिस्टर आपका क्या कहना है? पता नहीं पहले का हो सकता है कि व्हीकल का भी तो एज होता है उसकी वजह से भी होता होगा, बट देन हमने लास्ट 2 साल पहले शायद कुछ व्हीकल्स डिस्पैच किया था ऑल द अर्बन नोटिफाइड टाउन्स में। तो अभी तक तो ऐसा फिलहाल खबर तो नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा मियाओ में भी चल रहा है, एवरीडे मैं देखता हूँ। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए लेकिन कहीं कहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। 2 साल पहले बजट में भी रखा गया था कि ओपन जिम होना चाहिए कैपिटल के अलग अलग पार्क्स में, नाहरलगुन, ईटानगर, ये यूडी के अंडर थी ये स्कीम 2-3 साल पहले बजट में भी रखा गया था, लेकिन अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ और ये सब मिसयूज हुआ। नहीं ओपन जिम हमारा 24 अर्बन टाउन्स के लिए नोटिफाइड था, उसमें से शायद लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 12 टाउन्स के लिए दिया है, वो कहीं कहीं बन चुका है, कहीं कहीं बन रहा है। 12 का हो गया, बाकी 24 था तो उसमें फंड कम था
24 हम लोग कवर नहीं कर सका, उसमें एक जो ओपन जिम के लिए शायद 25 लाख करके हमने रखा था। सर अभी जो गाड़ियाँ फ्लैग ऑफ का उसमें जो स्टाफ होगा, ड्राइवर्स होगा, जो वर्किंग जो उसमें काम करेगा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में करेगा ना, जो रेगुलर स्टाफ लोग, और सैलरी किस तरह से होगा? नहीं, अभी हम लोग ने कंटीजेंसी में एंगेज किया है, उसका आई थिंक 11,000 पर मंथ होगा कंटीजेंसी, जो स्किल कंटीजेंसी है। तो सर ड्यू टू ये जो उनका जो वो होता है दरमा वगैरह रेगुलरली पे नहीं होता, उस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोग काम छोड़ देते हैं। तो सर इसको लेके किस तरह से रेगुलराइज करें? हम सुना नहीं है, क्योंकि जो पहले अपॉइंट किया था वो चल रहा है। आज भी मैंने देखा मियाँ से जो ड्राइवर आया था, तो हाँ, मेरा अपना बस्ती का ही लड़का है जो लास्ट 2-3 ईयर से गाड़ी को चला रहा है। तो इस बार हमने ये व्हीकल खरीदने का आगे ही 50 कॉन्टिजेंसी ड्राइवर का सैंक्शन हो चुका है, वो शायद आज ऑर्डर चला जाएगा। ईटानगर और पासीघाट स्मार्ट सिटीज़ हैं, आपके यूडी की तरफ से यहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को क्या क्या सपोर्ट दिया गया? नहीं, स्मार्ट सिटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, फंडिंग वहाँ से होगा। पहले 50-50 था, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% स्टेट को देना था, लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 90-10 कर दिया। तो 10% जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन था हमने दे चुका है। वो पहले 50-50 के हिसाब से हम लोग ज़्यादा ही दे दिया था, लेकिन अभी 90-10 में रेस्ट्रिक्टेड टू 500 करोड़ ओनली। पासीघाट स्मार्ट सिटी एंड ईटानगर स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ का ही रेस्ट्रिक्शन रखा है। यूटी डिपार्टमेंट के सर्किट अलग अलग जो सर्किट डिस्ट्रिक्ट में गेस्ट हाउस होते हैं, जो यूटी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाए गए, बहुत ही अलग अलग ख़राब कंडीशंस में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा। तो आप लोग की तरफ से कुछ उसको रिनोवेट करने का रिनोवेशन कुछ प्लान है? नहीं, फिलहाल अभी ऐसा प्लान तो नहीं है, लेकिन कहीं भी हो जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट रन करते हैं, लाइक टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी एसेट जो पहले से बहुत क्रिएट किया था। जब टूरिज़्म डिपार्टमेंट चलाता था उस समय में अच्छा से नहीं चलता था, इसलिए अभी सरकार ने सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स जो प्राइवेट को लीज आउट कर दिया। तो लीजिंग आउट के बाद में जो प्राइवेट पार्टी चलाता है तो अच्छा से चलाता है। मियाँ में भी बहुत, आप जाके देखिए, बहुत अच्छा से चलता है। सर ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जिसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से 2 पार्किंग लॉट बनाए जा रहे हैं। उससे पहले भी था, लेकिन एक्सटेंड करके अप्रैल 2022 किया गया था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके ऊपर आप सर थोड़ा अपडेट कर पाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सर यूडी ही है। नहीं, हम लोग का जो पार्किंग है एक ट्रिम्स में भी रखा है। रिसेंटली हम लोग ने फाइनलाइज़ किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से एक डायरेक्शन है कि बाय 20 जुलाई का अंदर में अगर हमने टेंडर नहीं किया, वो अवार्ड नहीं किया, तो गवर्नमेंट का फंडिंग वहाँ से आएगा नहीं। इसलिए लास्ट 3rd ऑफ दिस मंथ जून को ही हम लोग ने सीएम साहब को बुला के अंडर हिज चेयरमैनशिप हम लोग ने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया, डिसाइड किया। अभी डीपीआर चल रहा है, ऑलमोस्ट लाइक कैबिनेट साहब कमेटी का अप्रूवल भी हो चुका है। सर नहीं, मैं कह रही हूँ सर, जो ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी यूडी के अंदर आ रहे हैं सर, वो एग्जीक्यूटिंग जो डिपार्टमेंट यूडी है तो आई एम चीफ इंजीनियर अर्बन डेवलपमेंट मिस्टर तारिंग दारन। मैडम, जो आप पूछ रहे हैं, जो मल्टी लेवल कार पार्किंग लोकेटेड नियर हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट, ये भारत सरकार से ईटानगर ये रिसेंटली भारत सरकार से सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इट विल बी कंप्लीटेड विद इन अगस्त। तो सर अगस्त विल बी द डेडलाइन? नॉट, इट इज नॉट द डेडलाइन। So it has already crossed the deadline, sir. नहीं, देखिए, और इस बीच में जो पेंडेमिक का भी वजह से बहुत सारा गैप हो गया था, उसके बाद मैं बताता हूँ। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फंड फ्लो। भारत सरकार से मैंने कहा ना, मैंने आपको बताया कि फंड रिसेंटली आया, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको अगस्त में ख़त्म करेंगे। और जो APST पुराना APST पास स्टेशन का वहाँ जो बनाए हैं, उसको अभी कल परसों पैसा आया है फंड, उसको तो हम कोशिश करेंगे कि उसको सितंबर में ख़त्म करें। अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर में, और आज यहाँ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा 17 सैनिटाइजेशन व्हीकल को फ्लैग ऑफ किया गया। हमारे साथ है कॉरपोरेटर अरुणाचल के तार नाचुंग जी। अच्छा नाचुंग सर, ये कितना इफेक्ट पड़ेगा? आप ईटानगर की म्यूनसिपल को भी संभालते हैं, ऐसा होल अरुणाचल में सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सैनिटाइजेशन नहीं है, सैनिटेशन एक्चुअली इसे है। सैनिटेशन जो व्हीकल जो है कॉरपोरेशन, जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ये अलग एक जुरिडिक्शन है। जो अभी 17 नंबर्स गाड़ी जो अभी डोडा को जो दिया गया है, ये आपको मालूम है, आप सभी को मालूम है, हमारा 57 जो है रिकॉग्नाइज मीन्स जो टाउन है,
तो उसमें से आज है हमारा जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो यूडी एंड जो है लोकल अर्बन बॉडी जो है और कमलों मोसोंग सर ने जो गाड़ी अभी फ्लैग ऑफ किया है, ये अपना जो है जो ऑलरेडी जो हमारा रिकॉग्नाइज जो टाउन है स्टेट का अंदर में, हमारा 57 का जो अंदर में से आज 17 लोग को आज दिया है। तो ये कि मिस हमारा जो साफ सुथरा होना है हमारा जो टाउन में, जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि संग्राम में है दिया है, रोक्सिन में दिया, उसके बाद में काफ़ी सारा जगह में मिस अभी दिया गया है, मियो में दिया। तो उसका मतलब उस एरिया में भी जो है हमारा जो साफ़ सुथरा रहना है, वो एक्टिविटीज़ के लिए अभी जो गाड़ी जो है अपना यूडी डिपार्टमेंट को गाड़ी हैंड ओवर दे दिया। और साफ़ सुथरा का जो हमारा जो मकसद जो है साफ़ सुथरा करना है, तो इसलिए अपना जो रिकॉग्नाइज जो टाउन है उसमें भी साफ़ सुथरा रहना है, इसलिए गाड़ी आज को डर्टीएस्ट सिटी का खिताब टैग दिया गया था। अभी आप लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कैसे प्लानिंग चल रही है? अभी हम लोग को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो है आज जिसे हम लोग को भी एक ये दिया है, स्वीपिंग मशीन दिया है। तो उसका चलते हमारा अपना जो है स्पेशली जो बड़े रोड है, जो हाईवे रोड है, वो बहुत काफ़ी योगदान देगा, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें। और अपना जो है एक्टिविटीज़ जो रोज़मर्रा का एक्टिविटीज़ जो अंडर द लीडरशिप ऑफ जो मेयर तामे पासांग जी, तो हमारे यहाँ में काफ़ी मिस जो अच्छा काम कर रहा है। तो पहले का जिसे हमारा पास में TNP वगैरह व्हीकल वगैरह नहीं था, तो आज के दिन में हमारा पास में 100 नंबर्स व्हीकल्स, वही है नंबर्स जो टोटल नंबर्स हमारे पास में है, तो उससे हमारा एक्टिविटी चल रहा है। सर, लेखी से निजुली जो रोड कंडीशन कॉर्पोरेटर हिसाब से किस प्रकार आप काम कर रहे हैं? देखिए इस विषय में तो ये तो बहुत खतरनाक वाला विषय ये है, क्वेश्चन है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, जो हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट का साइड से हमारा PWD हाईवे डिपार्टमेंट को मिस ऑलरेडी दिया हुआ है। हाईवे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है। तो टेंडर करके अभी लास्ट 1 ईयर से अभी इसे जो कॉन्ट्रैक्टर जो है जो भी ये लिया है, कंपनी लिया है, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका ये वजह से हमारा पब्लिक को मिस ये प्रॉब्लम मिल रहा है। तो हम लोग का साइड से ये अपील है, जो भी मिस कंपनी है अपना जो है वर्क है उसको जल्दी करेगी। और एक ये भी फैक्टर है, हमारा बारिश है, 4 महीना तो सिर्फ ये वर्किंग सीजन होता है। तो अनदर जो है 8 महीना जो है बारिश, अभी भी बारिश हो रहा है, आपको देख रहा है। तो बारिश में ऐसे काम तो कर ही नहीं सकता है, वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे साथ थे तार नाचुंग कॉर्पोरेटर निजुली के युवराज मेहता फ्रॉम ईटानगर फॉर इंडिया टुडे। जैसे कि पहले हम लोग 7 डर्टीएस्ट सिटी में आया था, अभी जब हमने भागदौड़ संभाला पिछला 8-9 महीना से, हमारा सारा टीम, सरकार, खास करके मीडिया बंधु, आप लोग सब हम लोग संगत है, एकत्रित है। शिलोंग से क्या उससे भी हम लोग साफ बनाएंगे। लेकिन इसका चलते मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो सेंटर का जो पोल्यूशन वाला आता है, सर्वेक्षण वाला आता है, स्टेट का आता है, वो लोग भी पॉजिटिव होना चाहिए। I have lot many things to coming up with me in the system, like I want plant, solid waste management plant where I need to be make finish garbage to power, gas, garbage to manure, that has to be finished. वो मेरा सब्जेक्ट है। तो I am on the way। अब ज़मीन ले रहा है जहाँ में हम लोग सेवरेज करेंगे, सेप्टिक करेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं है बोल के हमारा नेशनल टीम को, NGT को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप फट से हमको इन्फोर्स मत करिए, सारा चीज़ आ रहा है। ऐसे करके बहुत जल्दी ईटानगर को, खास करके ईटानगर को हम शिलोंग को, मेघालय को, मिजोरम को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन देश में सबसे आगे जाने की कोशिश करेंगे।